ہم مل کر اسٹیبلشمنٹ اور اپنے ہاتھ بھی مضبوط کریں گے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس لیے پاکستان کھپے کہا تھا۔ صدر آصف زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا ہم نے آج تک جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے، بلوچستان کو بھی سدھاریں گے۔ جتنے کام ہم نے کیے ہیں 73 کانسٹیٹیوشن پہ کیے ہیں، ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مضبوط کریں گے۔ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں ان خبروں پہ بینڈ ہے، پر ہمیں پتہ ہے کہ ایک چھوٹی نظر کا چھوٹا آدمی جو کہ چیف منسٹر تھا، جب یہ مودی نے کیا 1 یونٹ پورے کشمیر کو، تو کہتا ہے کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادیاں کر سکیں گے۔ ان کی سوچ کا مقام دیکھو بنیوں کا۔ ہم نے اس کو 1 ہفتے کی جنگ میں سمجھا دیا کہ ایسا آسان نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ پڑا ان کے 8 جہاز گرے، اب یہاں بیٹھے بیٹھے ان کی فضائیوں کو گرا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میرے گھر پہ کوئی ڈرون نہیں چل رہا تھا، پر مودی کے گھر پہ ہم نے ڈرون چلائے۔ پاکستانیوں کی بھی سوچ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ زیادتی نہیں کرتے، ہم نے صرف ان کے وہ جہاز گرائے جو ہمارے پاس بامنگ کر کے گئے تھے، ورنہ 40 جہاز ان کے ہمارے ریڈار پہ تھے اور گرا سکتے تھے۔ کامران ٹیسوری کو دوبارہ سندھ کا گورنر مقرر کیا جائے، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا مطالبہ، کہا گورنر کے عہدے سے کم پر بات نہیں ہوگی، بجٹ میں بھی یہی مطالبہ رکھیں گے، بلدیاتی انتخابات سے پہلے توازن قائم کرنے کے لیے یہ عہدہ واپس لوٹانا ہوگا۔ ہمارے پاس ایک آئینی عہدہ تھا اور کامران ٹیسوری بھائی نے جو کام کیا شاید کسی گورنر نے نہ ماضی میں کیا، نہ ابھی کوئی کر سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایک آئینی عہدہ ایم کیو ایم پاکستان کا تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم اس عہدے کی بحالی سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے اور پی ایم ایل این اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ حق اسے لوٹایا جائے، ایم کیو ایم پاکستان کا آئینی عہدہ اسے واپس دیا جائے اور سابق گورنر کامران ٹیسوری بھائی کو فی الفور سندھ کا گورنر متعین کیا جائے، اور میرے خیال میں اس سے کم پر آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم بجٹ کے اجلاس میں جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی مطالبہ رکھیں گے۔ کوشش ہے بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کے بجائے انفورسمنٹ اور کمپلائنس پر زور ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کمالیہ میں اے آئی وائی نیوز سے گفتگو، کہا ملک کے 2 بارڈرز جنگ سے متاثر اور 2 صوبوں میں اندرونی خلفشار ہے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اخراجات کو ہر صورت پورا کریں گے۔ حکومت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھی متحرک ہے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہا جا رہا ہے۔ تو پوری یہ کوشش ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جا سکے، اور ہم نے ایک سائڈ پہ اپنے خرچے ان کو بھی کم کیا ہے، ہم نے اپنی ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو بھی کم کیا ہے، لیکن کچھ خرچے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے، اور میں اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے 2 بارڈر جو ہیں اس وقت آر افیکٹڈ، اندرونی خلفشار ہے 2 صوبوں میں، اس کے جو اخراجات ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، ان کو ہم نے ہر صورت اس کو پورا کرنا ہے۔ باقی جو ساری چیزیں ہیں اس میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کم سے کم بوجھ ڈال کے، کہ زیادہ ہماری کوشش یہ ہے کہ انفورسمنٹ اور کمپلائنس، جہاں بھی چوری ہے، پلفریج ہے، لیکیج ہے، اس کو روکا جائے۔ تو اللہ کرے کہ یہ کانفلکٹ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے، یہ کم سے کم جو بوجھ ہے وہ صارفین پہ جا سکے۔ جو ملتان میں 2 روز میں 10,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئی ہیں۔ ایم ڈی ستھرا پنجاب ذوالفقار احمد کا کہنا ہے ہماری ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں، شہری تعاون کریں۔ رانا فاروق رپورٹ کریں گے۔ ملتان شہر میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا صفائی آپریشن جاری ہے۔ کمپنی ملازمین کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں سے علائشیں اٹھا کر ٹھکانے لگائی جا رہی ہیں۔ ایم ڈی ستھرا پنجاب ذوالفقار احمد کا کہنا ہے ہماری ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں اور 2 دن میں ہم نے 10,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی ہیں۔ 10,000 سے زیادہ ٹن جو ہے وہ علائشیں ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ ہمیں چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بڑا جو سخت پیغام ہے کہ ہم نے ایک ایک علائش، ایک ایک شہری کی شکایت کا ازالہ کرنا ہے۔ تو ہماری ٹیمیں ہر جگہ پہ، گلی محلوں کے اندر، سڑکوں کے اندر ساری اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایم ڈی ستھرا پنجاب ذوالفقار احمد کا کہنا ہے شہریوں سے فیلڈ ٹیموں کے ساتھ تعاون کی اپیل ہے۔
अक्सर लोग आप देखे होंगे जो शिकायत या तस्वीरें आप देखें ना तो कंटेनर पड़ा हुआ है, उसके बाहर अलाइश है। तो मेरी शहरियों से आपके तवज्जो से ये अपील भी है कि अगर कंटेनर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर डालें ताकि वो बाहर अलाइश जो है वो उससे ताफुन पैदा ना हो। शदीद गर्मी के बावजूद सफाई अमला शहर को साफ सुथरा रखने में मसरूफ है। शहरियों को चाहिए कि वो भी अपना किरदार अदा करें और अमले के साथ ताउन करें। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर शदीद गर्मी में इंतजामिया और सुथरा पंजाब की टीम सड़कों पर मौजूद है। तफसील खानपुर से फयाज बलोच की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर ईद के दूसरे रोज़ भी सुथरा पंजाब टीम गली मोहल्लों मेन शाहरों में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने और इलाइशें उठाने में मसरूफ़ है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा तमाम मामलात की खुद निगरानी करते हुए सड़कों पर मौजूद हैं। ईद का दूसरा दिन है और बड़े जोश व खरोश के साथ जो कुर्बानी की ईद है वो मनाई जा रही है। कल बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी जो है जानवर अपने ज़िबा कर लिए थे। आज ईद का दूसरा दिन है और उसी ही जज्बे के साथ जोश वलवले के साथ कुर्बानी भी की जा रही है और साथ साथ सुथरा पंजाब की तरफ से सफाई का अमल जो है वो भी जारी सारी है। तमाम जगह से अलाइशें जो हैं महफूज तरीके से उठाई जा रही हैं। महफूज तरीके से उठाने के बाद साथ साथ उनको डिसइंफेक्ट भी किया जा रहा है, जगहों को हर के गुलाब के साथ धोया भी जा रहा है। जैसा कि अभी हम बल्दिया चौक में खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि सफाई का अमल अभी भी जारी है। शदीद गर्मी और तपिश में शहरी और दही इलाकों में इंतजामिया की निगरानी में बेहतरीन सफाई सुथराई का अमल जारी है। सड़कों को केमिकल के पानी से धोया भी जा रहा है। सुथरा पंजाब टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। कैमरामैन हसन रजा के साथ फयाज बलोच, एयरवे न्यूज़, खानपुर। ईद उल अज़हा पर मुस्तहिक अफराद को खुशियों में शरीक करने का मिशन। कराची में एहसास इज्तिमाई कुर्बानी के तहत कई साल की तरह इस ईद पर भी मुस्तहिकीन में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया। ईद कुर्बान पर खुशियां बांटने का आज़म लिए एहसास इज्तिमाई कुर्बानी 2026 की जानिब से कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया। लातादाद ख़ानदान फ़ायदा उठा रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त पसमानदा इलाकों में तकसीम किया जाता है। एहसास इज्तिमाई कुर्बानी के मुंतज़मीन का कहना है इज्तिमाई कुर्बानी के मुस्तहिकीन में गोश्त बांटना मुआशरती हमांगी और बाहमी मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल है। कोशिश है कोई भी ईद की खुशियों से महरूम ना रहे। घर में अपनों के साथ ईद मनाना सबको पसंद है, लेकिन वतन की हिफाजत की खातिर सरहदों पर तैनात फौजी जवानों की ईद कैसी होती है कम ही लोग वाकिफ हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी अफसरान और जवानों की ईद से मुताल्लिक देखते हैं मुबशिर चौधरी की रिपोर्ट। ये आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली से मुल्हिका लाइन ऑफ कंट्रोल है। पाक फौज के जवान घर वालों से दूर ईद मना रहे हैं। सिपाही फौजी वर्दी में ही सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। ऑफिसरान और जवान ईद के रोज़ घर वालों से फ़ोन पर बात करते और खुशियों में शामिल होते हैं। ईद की नमाज के बाद हम लोग सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने अजीज़ों क़रीब से बातचीत करते हैं। फौजी ऑफिसरान पैगाम दे रहे हैं कि कौम सुकून से ईद मनाए। आप खुशियाँ मनाएं, आपके भाई आपके लिए सरहद के ऊपर कौम का दिफा लिए हुए हैं। फौजी जवान ईद पर भी मोर्चा जन हुए दुश्मन को ताक में रखते हैं। हमारी पटोले का मकसद यही होता है कि हम दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाकर उसकी हरकत को नोट करें, उस पर नज़र रखें। इन फौजी जवानों के लिए सरहदों की हिफाजत एक आम सी ड्यूटी नहीं बल्कि कौमी फ़र्ज है। मुबशिर चौधरी, एयरवाई न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 51, लाड़काना में 50 डिग्री रहा। जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, सिब्बी में 49, सक्खर और तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में पारा 42 से 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में पारा 41 डिग्री रहा। महकमे मौसमियात ने शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई करती है। लाहौर में गर्मी की लहर बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम आंधी चलेगी और बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जिससे वक्ती तौर पर गर्मी का जोर टूट जाएगा। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। जी, गुज़िश्ता चंद रोज़ से लाहौर शहर में मुसलसल गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। आज महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर शहर का कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज टेम्परेचर जा सकता है। तो शाम के वक्त आंधी चलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और बूंदाबांदी भी एक्सपेक्टेड है, जिसके बायस वक्ती तौर पे दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी। अभी की सूरत हाल शहर की ओवरऑल ये है कि सुबह के वक्त हवा चल रही है, लेकिन
गर्मी की शिद्दत जो है वो अभी भी बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आज शाम हल्की बारिश की प्रेडिक्शन की है। जी, कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। मजीद बताएंगे असगर उमर। ईद का तीसरा दिन और कराची में अच्छी तेज़ हवाएं चल रही हैं इस वक्त, लेकिन महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची में आज दर्जा हरारत ज़्यादा अब में इजाफा होगा। आज कम से कम कराची में दर्जा हरारत 30.1 रहा, लेकिन ये 35 से 37 तक जाएगा दर्जा हरारत। और चूँकि हवा में नमी का तनासुब 72% रहेगा, इसलिए गर्मी शहरियों को ज़्यादा महसूस होगी और इस तरह मजमूई तौर पर कराची में गर्म और मरतूब मौसम रहेगा। जी, कराची में ईद के दूसरे रोज़ भी जानलेवा ट्रैफिक हादसात। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात के दौरान 7 अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी हो गए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में मरने वाले शहरियों की तादाद 411 हो गई। 4,500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। तेज़ रफ्तारी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और लापरवाही के सबब हादसात में शहरी मुसलसल जान की बाजी हार रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है ट्रैफिक हादसात में मरने वाले 7 अफराद की लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल की गईं, जबकि ज़ख्मी होने वाले बाज़ अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जैकबाबाद के गांव में सिद्दीक आराई में जलने वाले 121 घर नहीं बल्कि इन खानदानों की क्या जिंदगियां थीं, मोहम्मद मूसा बलोच की रिपोर्ट में देखिए। अभी इन घरों में चूल्हे जलते थे, बच्चे खेलते थे और ईद की रौनक होती थी, मगर अब हर तरफ तबाही है। मासूम बच्चे जली हुई मिट्टी पर बैठकर अपने घरों को देख रहे हैं। बूढ़ी माएं राख में अपनी जिंदगी तलाश कर रही हैं और बुजुर्ग मर्द खामोशी से अपनी बेबसी का मातम कर रहे हैं। बाला बच्चे के लटो कपड़ो हर को करे तो जग जान उन्हनि जी दया सां केड़ी दया सां उसन में सड़ूं था। असांखे ॿियो कुझु न खपे, असांखे घर बचड़नि जो छप्पर ठाराए, जेको घर ठाराए। जैकबाबाद के इस गांव में इस बार ईद नहीं आई, सिर्फ दर्द, आहें और खामोश सिसकियां रह गई हैं। जैकबाबाद के गांव मोहम्मद सिद्दीक आराई में जलने वाले ये घर आज भी जुल्म, बेबसी और इंसानियत को हिला देने वाली दर्द की दास्तान सुना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई। मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज की सेहत से मुताल्लिक किए गए ट्वीट में बताया है कि सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब घर मुंतकिल हो गई हैं। लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की बराह रास्त निगरानी की। ईद पर रिलीज होने वाली ARY फिल्म्स के शाहकार लवली सॉ ने पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में धूम मचा दी। लाहौर में भी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में रश लग गया। शहजाद मलिक की रिपोर्ट। जावे कुछ नहीं बोलती जिंदड़ी ने मोनी मेरी तेरे पीछे डुलती तेरे जई कोई होर नहीं होनी मैनू लगदी हीर तो सोनी। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की मुश्तरका पेशकश। लव दी सॉ को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए ईद के दूसरे रोज भी लोग उमड़ आए। हम लव दी सॉ मूवी देख के आए हैं और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मजा आया हमें। मैं लव दी सॉ देखने जा रहा हूँ, तो यही सुना कि बड़ी अच्छी मूवी है, तो लेट्स सी। हम लव दी सॉ मूवी देखने आए। फिल्म बीनों ने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म है, हमें इंतजार है कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आना चाहिए। फिल्म अच्छी लगी और जो वो लेसन देने की कोशिश करें हमें वो समझना चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान में बनी है और इतने कम बजट पे इतनी अच्छी फिल्म बनी है, मैं तो वेट करूंगी टू बी कंटिन्यू का। फिल्म शायकीन कहते हैं कि ARY फिल्म्स की काविशों से फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करेगी। कैमरामैन राना रिजवान के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज़, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही।